Think it over. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it day or night? Do you know that our eyes can live even after our death? By donating our eyes after we die, we can light the life of a blind person. About by donating our eyes after we die, we can light the life of a blind person. About 35 million people in the developing world are blind. कितना है? Almost 3.5 crore. And most of them can be cured. About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes. Eyes के donation से है ना corneal transplantation होता है और बहुत लोग देख सकते हैं. Out of these 4.5 million, 60% are children below the age of 12. So if we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? ठीक है, तो क्या कि अब जब आइज डोनेट कर रहे हैं उसके पहले क्या क्या देखना चाहिए? आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स. People who use spectacles or those who operated for cataract can still donate the eyes. People who are diabetic, have hypertension, asthma patients, and those without communicable diseases can also donate eyes. ठीक है, केवल कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, बाकी जो है जो लोग हैं वो डोनेट कर सकते हैं. आइज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ. इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली. तो कितना देर में आई को रिमूव करना पड़ता है? 4 से 6 घंटे के अंदर. द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज एट द होम ऑफ द डिजीज्ड और एट अ हॉस्पिटल. तो या तो होम पे या तो हॉस्पिटल पे. आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 minutes. It's a simple process and does not lead to any disfigurement. Persons who are infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis or encephalitis, they cannot donate their eyes. An eye bank collects, evaluates and distributes the donated eyes. All eyes donated are evaluated using strict medical standards. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. The identities of both the donor and the recipient remain confidential. One pair of eyes gives vision to up to 4 corneal blind people. एक आई से 4 corneal blind people को हम लोग मदद कर सकते हैं देखने में. आगे बढ़ते हैं. Refraction of light through a prism. Refraction of light through prism. You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. Glass slab से कैसे रिफ्रैक्ट होता था? पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ, याद है? ऐसे रिफ्रैक्ट होता था. यह ग्लास स्लैब ऐसे आया, इधर हुआ और फिर ऐसे गया. ये और ये दोनों जो है पैरेलल होता था. सो बेसिकली देयर वाज लेटरल शिफ्ट. क्या था? लेटरल शिफ्ट होता था. क्लियर है क्या? ऐसा और ना, ये है लेटरल शिफ्ट. जाना था इधर, लेकिन अब देखिए इसके पैरेलल ये रे निकल जाता है. क्लियर है क्या? ये किस में होता था? एक ग्लास स्लैब में. किसमें? ग्लास स्लैब में. अब आगे बढ़ते हैं. However, it is slightly displaced laterally. अच्छा, you have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. For parallel refracting surfaces, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through the transparent prism? Consider a triangular glass prism. तो हम लोग एक triangular glass prism को consider करते हैं. दिख रहा है क्या? ये है triangular
glass prism? Yes or no? Yes or no? ये दिख रहा है, ये है ट्रायंगल फेस, दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? तो इसको दो ट्रायंगल बेस होता है इधर और इधर, और तीन रेक्टेंगुलर रहता है। ये दिख रहा है कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है, यस और नो? वैसे इधर से भी एक रेक्टेंगल है और नीचे से भी रेक्टेंगल है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो कौन कौन सा है रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस? ए बी ई डी, ये वाला। क्लियर है क्या? फिर ई एफ सी बी, ई एफ सी बी, ये वाला नीचे वाला। क्लियर है क्या? एंड डी एफ सी ए, डी एफ सी ए, ये वाला। क्लियर है क्या? ऐसा और ना दिख रहा है? दिस इज ग्लास प्रिज्म, yes or no? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. दिख गया क्या? दो triangular base दिख गया और तीन rectangular lateral surface भी दिख गया, yes or no? These surfaces are inclined to each other. और ये सारा surface जो है inclined है, ये दिख रहा है, ये एक इससे inclined है, ये वाला इससे inclined है, ये वाला और ये दोनों आपस में inclined है। क्लियर है क्या? सबका एंगल बना हुआ है, क्लियर है क्या? सब इंक्लाइंड है एक दूसरे से, यस और नो? द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म, यस और नो? तो ये है लेटरल सरफेस 1, ये है इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे हो गया लेटरल सरफेस 2। इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब एक्टिविटी किया जा रहा है। एक्टिविटी 11.1, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वाइट पेपर में यहाँ पे ड्राइंग पिन्स हम लोग कर दिए हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है, ये है, ये एक पिन है, ये दूसरा पिन है, ये तीसरा पिन है, ये चौथा पिन है। दिख रहा है क्या? यस और नो? Place a glass prism on it such a way that it rests on a triangular base. Triangular base पे रेस्ट कर। Trace the outline of the prism using a pencil. ठीक है, तो ये प्रिज्म को जो है हम लोग ट्रेस कर लिए, ये आउटलाइन। क्लियर है क्या? Draw a straight line P inclined to one of the refracting surfaces, say AB of the prism. ये एक बना लिए हम लोग जो कि AB से इंक्लाइंड है। दिख रहा है क्या? yes or no? Fix 2 points say at P and Q on the line PE as shown in figure 11.4. तो यहाँ पे जो है हम लोग दो लाइन फिक्स, दो पिन यहाँ पे हम लोग फिक्स कर दिए। Look for the images of the pins fixed at P and Q through the other face AC. अब ये AC के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका इमेज किधर आ रहा है। तो इसका इमेज देखिए R और S पे आ रहा है। क्लियर है क्या? yes or no? Fix two more pins at points R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie in the same straight line. Remove the pins and the glass prism. अब सबको रिमूव कर दीजिए। The line P, अब सब लाइन को एक्सटेंड कीजिए। लाइन P meets the boundary of the prism at point E. See figure 11.4. Similarly, join and produce the points R and S. इसको भी join कर दिए। Let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively. एक E पे मिल रहा है, एक F पे मिल रहा है respectively. Join E and F. Draw perpendiculars to the refracting surfaces AB and AC of the prisms at the points E and F respectively. E और F दोनों पे 90 डिग्री डाल दीजिए। ये 90 डिग्री है और ये भी
90 डिग्री. Mark the angle of incidence, angle I, angle of refraction and the angle of emergence E as shown in the figure 11.4. यहाँ पे I कीजिए, यहाँ पे E कीजिए, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन. ये बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन I और E हम लोग आराम से कर सकते हैं और R भी आराम से हम लोग मार्क कर सकते हैं. क्लियर है क्या? तो इसमें देखिए PE हो गया इंसिडेंट रे, EF हो गया रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे टकराया फिर रिफ्रैक्ट किया. FS हो गया इमर्जेंट रे, इधर से निकला. एंगल A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल I is angle of incidence, angle R is the angle of refraction, angle E is the angle of emergence and angle D is the deviation. तो ये एक्चुअली जाना था इधर ना, इसको ये तो इधर जा रहा था, लेकिन अब फाइनली ये इधर जाने लगा. तो दोनों को जो है आगे एक्सटेंड कीजिए. तो जाना था इधर लेकिन अब जा रहा है इधर, तो ये हो गया एंगल D विच इज एंगल ऑफ. Here P is the incident ray, EF refracted ray, FS is the emergent ray. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards the normal. क्योंकि यहाँ पे ये गिरा है और ये इधर है एयर है, इधर ग्लास है, तो इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा. क्लियर है क्या? Yes or no? At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air, hence it has been away from the normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर है क्या? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे रे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से. ठीक है, रेयर से डेंसर में गया, इसीलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया. ये आ रहा है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसके बाद फिर आया, फिर टकराया, और अब जो है ये नॉर्मल से बेंड अवे हो गया. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म. तो यू मे नोट दैट द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी. पहला सरफेस पे क्या हुआ था? द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर आया. एट द सेकंड सरफेस ए सी, द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू एयर, हेंस इट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. तो पहला पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, दूसरा पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा. इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट ऑकर्स इन अ ग्लास स्लैब? नहीं, सिमिलर तो सिमिलर है. ग्लास स्लैब पे भी दो जगह जो बेंडिंग होता था, ग्लास स्लैब पे भी कहाँ बेंडिंग होता था? ध्यान से देखें तो ग्लास स्लैब पे भी यहाँ पे ऐसे बेंडिंग होता था, ऐसे आता था, यहाँ पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होता था, फिर यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता था. प्रिज्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी, यहाँ पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, दोनों में है. लेकिन क्योंकि ये एक एंगल पे है और ये पैरेलल था ये दोनों, इसीलिए ये दोनों भी पैरेलल निकलता है, और ये एंगल पे है तो इसीलिए ये दोनों भी एक एंगल पे निकलता है. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. In this case, the angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. Dispersion of white light by a glass prism. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism.
The inclined refracting surfaces of a glass prism show exciting phenomenon. Let us find it out through an activity. Activity 11.2. Take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle. ठीक है. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in figure 11.5. यहाँ से white light आया और हम लोग प्रिज्म पे फॉल करने दिए तो क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखता है. ये क्या? Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. What do you observe? You'll find a beautiful band of colors. Why does this happen? The prism has probably split the incident white light into a band of colors. Note the color that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of the colors that you see on the screen? तो स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे विबग्योर. क्या देखेंगे? लेकिन इसमें विबग्योर जो है V नीचे रहेगा, R ऊपर रहेगा. क्लियर है क्या? yes or no? The various color scenes are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in the figure 11.5. The acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of colors. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. तो इसको क्या बोलते हैं? colored band को क्या बोलते हैं? Spectrum. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its components is called dispersion. तो ये white light जो है अलग अलग lights में split हो रहा है. ये actually ये lights इसके already अंदर present था, अब ये split हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं the splitting of light into its various components is known as dispersion. You have seen that white light is dispersed into 7 color components by prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through prism. The red light bends the least while the violet the most. तो basically ये होता क्यों है bend? ये देखिए हम लोग देखे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिए हैं, है ना. ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस और इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन. क्लियर है क्या? सर नो. यहाँ पे जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा है, ये नॉर्मल है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अब जो है क्यों होता है क्या कहते हैं डिविएशन. अभी देखिए ध्यान से, मेनी रेज है, बहुत सारे रेज है. बीम ऑफ वाइट लाइट में बहुत सारे रेज रहते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट. क्लियर है क्या? सारा रेज आया यहाँ पे, यस और नो. अब सारा रे यहाँ से जो है बेंड करेगा, यस और नो. लेकिन अब क्या हो जाता है कि कोई रे ऐसे बेंड करता है, कोई रे ऐसे बेंड करता है. क्लियर है क्या? V ऐसे बेंड करता है और R ऐसे बेंड करता है और बाकी सब इसके बीच में रहता है. क्लियर है क्या? यस और नो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है. यस और नो. स्नेल्स लॉ पढ़ा है. तो यहां पे अगर I है तो देखिए ध्यान से, 1 इंटू साइन I शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन R. क्लियर है क्या? और ये नॉर्मल से ये हो जाता है R. तो दिक्कत. लेकिन हर एक लाइट वेवलेंथ का म्यू अलग अलग होता है, अरे दिन में. और V का म्यू जो है सबसे ज्यादा होता है और रेड का म्यू सबसे कम होता है. क्लियर है क्या? तो इसीलिए जो है वायलेट जो है क्या कहते हैं, यहां पे आ गया, रेड इधर आ गया. क्लियर है क्या? यस और नो. तो बेसिकली जो है दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, हम लोग लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is
dependent upon the wave of light. ठीक है. Why do we get different colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through the prism. The red light bends the least, while the violet bends the most. Thus, the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is a band of distinct colors that we see in a spectrum. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. अब देखिए ये ऐसा हो गया, क्लियर है क्या? यहाँ पे कलर्स स्प्लिट हो गया. अब न्यूटन ने क्या किया, एक और प्रिज्म लगा दिया, सोचा कि और होगा, लेकिन अब उल्टा हो गया, जुड़ गया. क्लियर है क्या? सॉरी. He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism, as shown in figure 11.6. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 different colors. Sunlight जो है 7 different colors का होता है. पहले प्रिज्म से इस केस में क्या हो गया, पहले प्रिज्म से स्प्लिटिंग हो गया, लेकिन दूसरे प्रिज्म से जो स्प्लिट था वो सब ज्वाइन होकर के फिर से व्हाइट लाइट बना दिया. अगर ध्यान से देखें इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक्चुअली ये ग्लास स्लैब बन जाता है और ये लाइट जो है ये लाइट से पैरेलल जाएगा. Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Figure 11.7. ये फिगर हमको याद कर लेना है ना. 11.7 ये फिगर, और कैसे रेनबो बनता है ये वाला फिगर हम लोग को अच्छे से याद कर. सनलाइट आया, ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ से होकर के, है ना, तो यहाँ पे रेज जो है टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिस्पर्शन हो जाता है. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. तो अगर सन इधर है तो रेनबो इधर दिखेगा. क्लियर है क्या? The water droplets act like small prisms. तो ये देखिए ये जो है छोटा प्रिज्म की तरह दिख रहा है. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect internally. यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, एंड देन फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. Due to the dispersion of light and the internal reflection, different colors reach the observer's eye. अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग को 7 अलग अलग कलर दिखेगा. You can see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. ठीक है, क्लियर है क्या? yes or no? ठीक है, तो ये देखिए डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म है ना. तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल ऑफ द मीडियम पे और लाइट पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए अलग अलग लाइट को अलग अलग बेंड करता है. क्लियर है क्या? यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग लाइट को अलग अलग बेंड किया गया है. क्लियर है क्या? yes or no? क्लियर है? दिख रहा है क्या? रेड यहाँ पे है, वायलेट इधर है, अलग अलग लाइट को ये ऐसे जा रहा था, इसको रेड को ऐसा बेंड किया है, लेकिन वायलेट को इतना बेंड कर दिया. क्लियर है क्या? ठीक है, अब दोनों को हम साथ में रख दिए तो दोनों जो है क्या हो गया, एक साथ जाने लगा. क्लियर है क्या? ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स मेंशन इन एनसीईआरटी. बेसिकली ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ग्लास स्लैब हो जाता है. क्या हो जाता है? ग्लास स्लैब हो गया. क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये हो गया देखिए वही रेनबो. तो ये जो रेनबो फॉर्म होता है दिख रहा है ध्यान से, अगर यहाँ पे पहले पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन. क्लियर है क्या? ठीक है, दैट्स इट, डन.